ਵਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ 100% ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। क्योंकि इतने संजय भाटिया वर्गे नहीं जिन्हें उन्हें अखबार के फ्रंट पेज से दिता है, मैं पहला भी समझौता कराया है, मैं हुण करा लवांगा। वो संजय भाटिया इत्थे किसी पिंड दा रौला नहीं, इत्थे किसी जट दी वट दा रौला नहीं, इत्थे साडे गुरु ग्रंथ साहिब जी की गल है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਜਿਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ करके कहना पैंदा बार-बार कहते ना वीर भी कहते जेड़ा कहते जेड़ा बुला कमेटी दो फड़ हो चुकी है। जो 25 स्वरूप ले जाने का मामला है उसमें गुरविंदर सिंह धमीजा ने एक ऑडियो जारी किया है जिसमें उसमें साफ तौर पर जो महंत करमजीत जो है प्रधान है उनको वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 25 स्वरूप को शिफ्ट करना है, उनको तरीके से लेकर जाना है। लेकिन अब जो है महंत करमजीत जो है इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी कोई परमिशन नहीं ली गई थी। आपको लगता है कि आपस में कमेटी दो फड़ हो चुकी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? जब ये लोग सिख मर्यादा से जुड़े ही नहीं हुए, ये तो सारे भ्रष्ट लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर। अब इनकी लड़ाई क्या है? लड़ाई इनकी ये नहीं है भी ये गुरुद्वारे का वहाँ पर प्रबंध या सेवा संभालने के लिए गए हैं, ये तो गोलकों की तरफ गए हैं, इनका ध्यान ही उस पर है। ये सारे लोग करप्ट हैं। हम इस बात में नहीं जाना चाहते इनमें से कौन सही है कौन गलत है। हमारा तो ये पूरी की पूरी कमेटी पूरी हरियाणा की संगत है। हाँ वो तो ये आपस में ही कर रहे हैं लगातार। हम उस बात में यहाँ की आज जो पंचायत का हमारा उद्देश्य ये नहीं है भाई दादूवाल सही है धमीजा सही है करमजीत मंत है। ये कमेटी बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये सारी कमेटी भंग की जाए और सरकार इलेक्शन कराए। यदि सरकार इलेक्शन की तरफ नहीं आती फिर अपनी भी तैयारी कर लो। जी इसकी क्या गारंटी है कि आप लोगों में से या कोई और कमेटी कल को चुनकर आती है उनका नजर गोलकों पर नहीं रहेगी, वो घोटाले नहीं करेंगे? जो संगत जिनको चुनेगी, संगत किसको चुनेगी? उसको ही तो चुनेगी जो उसको ठीक लगेगा, जिसका उसने चरित्र देखा होगा, जिसका करैक्टर देखा होगा, जिसका किरदार देखा होगा। डर रहे सी भी पता नहीं उत्थे इकट्ठे कीते ते पता नहीं की कहणगे ते की होਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟ ਕਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਕ ਮਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਕਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਐਮਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 41 ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ 41 ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਾਜ ਦੀ ਉਸ ਪੱਗ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅੱਧੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਮਰਥ ਹੈਗੇ। आने वाले समय में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो नई कमेटी बनी थी उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारे में जो कुछ हुआ उसकी निंदा पूरे हरियाणा में सिख समाज करता हुआ नजर जरूर आ रहा था। लेकिन आज इसको लेकर करनाल के गुरुद्वारा डेरा कारसेवा में सिखों की एक पंचायत रखी जाती है और जिसमें यह फैसला लिया जाता है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो कमेटी है प्रधान है वो भंग की जाए और नई कमेटी जो है चुनाव उसका किया जाए। और इस बारे में बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं जो कमेटी के यहाँ पर जो अभी जो लोग हैं यहाँ पर जो फिलहाल जिन्होंने आज इसकी शुरुआत की है उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जगदीप सिंह ओलक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे जो आज मीटिंग हुई है? मीटिंग की जरूरत पड़ी, एक तो हिंदी में ही बोलूँ सारों को समझ आ जाए, पूरे हरियाणा को सारों को है। जो
हरियाणा सरकार द्वारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई है वो हरियाणा की सिख संगत को नामंजूर है। उसमें वो लोग लिए गए हैं जिनको सिख रहत मर्यादा के बारे में कोई पता नहीं, और उन्होंने जो घटनाएं हमारे गुरुद्वारों में हुई, जो ये पिछली घटना मजोकरा साहब में, उसको लेकर हमारी सिख संगत में भारी रोष है। और उसको लेकर आज करनाल में पूरे हरियाणा के जो सिख आगू थे उनकी एक पंचायत हुई है, और यहाँ से यही सरकार को हमारी चेतावनी है, आप इलेक्शन करवा दो और दिसंबर 2023 से पहले इलेक्शन करा के हमारे यहाँ पर इलेक्टेड बॉडी जिसको संगत चुन के भेजे वो मेंबर ही हमारे गुरुद्वारे का प्रबंध चलाएं। ये आपके बनाए हुए जो मेंबर हैं, जो आपकी चापलूसी करके मेंबर बने, और जिस प्रकार से ये हमारे सिख मर्यादाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हरियाणा की सिख संगत को मंजूर नहीं। एक तो इलेक्शन करवाया जाए और तब तक इस कमेटी से सारी पावर ली जाए और इसको बंद किया जाए। क्या प्रोग्राम और कब है? अब अगला प्रोग्राम यहाँ से सिरसा जिले में 28 तारीख को एक विशाल वहाँ पर इसी प्रकार इससे एक रखा गया है कठ, और वहाँ पर एक रोष मार्च निकाला जाएगा सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सारी घटनाएं सरकार की शय पर हो रही हैं। ये कमेटी भी सरकार की बनाई हुई है और सरकार के ही लोग हैं, उनके वर्कर हैं जो इस कमेटी में हैं, उन्हीं के बनाए हुए लोग हैं। आज इस पंचायत का करने का क्या मुख्य उद्देश्य था? पंजोगड़ा साहब गुरुद्वारे में क्या हुआ था ऐसा संक्षिप्त में? नौबत क्यों आई है इस चीज़ की? वहाँ पर जिस प्रकार से मीटिंग के अंदर जो मेंबर हैं प्रबंधक कमेटी के, जो ओहदेदार हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ गाली गलौज की, और वहाँ पर हमारी महिला मेंबर भी बैठी हुई थी, उनके सामने भी गाली गलौज हुई और एक दूसरे को धमकियाँ दी और मारपीट तक पहुँचे, उसको लेकर ये चीज़ हमारे गुरुद्वारों में शोभा नहीं देती, ना ही हमारे गुरुघरों में ऐसी कोई मर्यादा है। तो ये गलत लोग यहाँ पर घुसोए गए हैं, जिसकी वजह से ये हुआ, उसको लेकर रोष है। उसको लेकर ही आज करनाल में पंचायत हुई है, और 28 को सरसा में दादूवाल और दमीजा का विरोध किया जा रहा है। दादूवाल दमीजा का, वो तो 40 के 40 ही दादूवाल और दमीजा है। उनमें से तो हम जो बीजेपी के बनाए हुए हैं 40 के 40 हैं, वो एक भी मंजूर नहीं ना वो कमेटी चलेगी। हमें इलेक्टेड बॉडी चाहिए, इलेक्शन कराओ, संगत अपने मेंबर चुने, वो मेंबर चुने गुरुद्वारों के प्रबंध चलाएंगे, वो अपना प्रधान चुनेंगे। जो ये सरकारी मोहरे हैं, सरकार द्वारा बनाए गए एजेंट हैं, ये नहीं चलेंगे, और इसके खिलाफ नहीं तो सरकार तैयार हो जाए। एक बड़ा आंदोलन की नींव रख दी है। हम सरकार को अब भी चेतावनी देते हैं, भाई आप जाग जाओ, ये हमारे धर्म का मसला है, हमारे गुरुद्वारों का मसला है, इसमें दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। आप इलेक्शन कराओ और इससे बाहर हो। कमेटी दो फाड़ हो चुकी है। जो 25 स्वरूप ले जाने का मामला है, उसमें गुरविंदर सिंह दमीजा ने एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें उसमें साफ तौर पर जो महंत करमजी जो है प्रधान है, उनको वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 25 स्वरूप को शिफ्ट करना है, उनको तरीके से लेकर जाना है। लेकिन अब जो है महंत करमजी जो है इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी कोई परमिशन नहीं ली गई थी। आपको लगता है कि आपस में कमेटी दो फाड़ हो चुकी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? जब ये लोग सिख मर्यादा से जुड़े ही नहीं हुए, ये तो सारे भ्रष्ट लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर। अब इनकी लड़ाई क्या है? लड़ाई इनकी ये नहीं है भी ये गुरुद्वारे का वहाँ पर प्रबंध या सेवा संभालने के लिए गए हैं, ये तो गोलकों की तरफ गए हैं। इनका ध्यान ही उस पर है। ये सारे लोग करप्ट हैं। हम इस बात में नहीं जाना चाहते इनमें से कौन सही है कौन गलत है। हमारा तो ये पूरी की पूरी कमेटी, पूरी हरियाणा की संगत है। घोटाला भी सामने हाँ, वो तो ये आपस में ही कर रहे हैं लगातार। हम उस बात में यहाँ की आज जो पंचायत का हमारा उद्देश्य ये नहीं है भाई दादूवाल सही है, दमीजा सही है, करमजीत महंत है। ये कमेटी बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये सारी कमेटी बंद की जाए और सरकार इलेक्शन कराए। यदि सरकार इलेक्शन की तरफ नहीं आती, फिर अपनी भी तैयारी कर लो। जी, इसकी क्या गारंटी है कि आप लोगों में से या कोई और कमेटी कल को चुनकर आती है, उनका नजर गोलकों पर नहीं रहेगी, वो घोटाले नहीं करेंगे? जो संगत जिनको चुनेगी, संगत किसको चुनेगी? उसको ही तो चुनेगी जो उसको ठीक लगेगा, जिसका उसने चरित्र देखा होगा, जिसका करैक्टर देखा होगा, जिसका किरदार देखा होगा। आज क्या है, ये लोग उठा, एक आदमी तो ऐसा है वो बिल्कुल क्लीन शेव, वो मुख्यमंत्री को जाके कहता है जी मेरे को भी कल मैं इस कमेटी में मेंबर डाल दो। जब ये कमेटी बन रही थी तब की बात बताता हूँ घटना। मुख्यमंत्री कहता तू तो क्लीन शेव है, तेरे को तो सिख मर्यादा का पता नहीं। कहता जी क्या लगता है जाता हुआ मैं अमृत छक जाता हूँ, कल मेरे को मेंबर डाल देना। उसको अगले दिन लिस्ट में डाल दिया। क्या ये हमारे गुरुद्वारे या हमारी प्रबंधक कमेटी में ऐसे लोग आएंगे? सिर्फ मजाक बना रखा है उन्होंने। तो ये सारा कुछ सरकार की, कम से कम जब इलेक्शन होगा तो लोग जिसको चुनेंगे अपने एरिया में जो अच्छा आदमी होगा, हम संगत से भी ये अपील करते हैं। कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कमेटी बनाने की ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ, ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ, ਕਦਾ ਕਰਵਾਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ
ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਮੰਤ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈक्शन करवाना है, संगत चुनेगी, संगत के चुने ही मेंबर प्रवान। एक आखिरी सवाल, सिरसा के नुमाइंदे आए हैं, आप ये बताएं कमेटी को भंग करने को लेकर 28 अगस्त को सिरसा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो प्रोटेस्ट होगा, कितने बजे होगा, कहाँ होगा? 11 बजे जो सोमवार 28 अगस्त का समय दिया है भाइयों ने, यहाँ से अलख जगाई है करनाल वालों ने, तो उसका बाखूबी से पूरे ये शोर है जो यूपी का लगता शोर है, हरियाणा का यहाँ है, और वो जो हमारा एरिया है वो राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर है, दोनों तरफ से फिर सभी ज़िलों का प्रोग्राम रखा गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सिख संगत को पूरी को अपील करना चाहते हैं, बेनती करना चाहते हैं, ये जितने भी लोग लगे हैं इन्होंने ना तो किसी ने प्रधान बनना ना इलेक्शन लड़ना। हम लोग जैसे आपने सवाल किया था पहले भी जो लोग नए आएंगे तो वो भी क्या करेंगे, लेकिन जनता जो वोट देती है उसकी जवाबदेही होती है, उसको पूछती है। इनका तो जवाबदेही है ही नहीं, ये तो स्क्रिप्ट लिख कर जो बीजेपी सरकार इनको लिख के देती भी आपने ये करना, आपने वो करना है। आपने देखा भी चैनलों के माध्यम से हर आधे पौने घंटे बाद वो परोसा जा रहा है भी लड़ाई लड़ाई लड़ाई। सिख कौम को जो किसी भी त्रासदी में, चाहे कोरोना काल था, चाहे सुनामी थी, चाहे भूकंप था, चाहे किसान आंदोलन था, चाहे बाढ़ था, उस समय जब हमने हमारे समाज ने सेवा की, आप लोगों के सहयोग से आपने दिखाया भी आप लोगों ने, वो आप रट कर रहे हैं इनकी नज़र में, और उनको नीचा करने के लिए बीजेपी वाले, एक भाटिया जो MP है वो कहता मैं राजीनामा कराऊंगा, हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारा सिख समाज है जो इतना सक्षम है भी अपने मसले खुद हल कर सकता है। किसी के ज्ञापन दिए जाएंगे इस बात पर? हाँ बिल्कुल, रोष मार्च है। जिस दिन वहाँ दो जिलों का ऐलान हो गया है, 28 को सिरसा में है, 4 को कैथल में है, तो उसके बाद जितना आगे समय लेगा, क्योंकि सभी आज ही डेट अनाउंस करने को तैयार थे, जोश है लोगों में, लेकिन हमारे जितने भी साथी आए हैं वो सारे जोश के साथ साथ होश में भी हैं। हमने बड़े अनुशासन से हम जो है इस हमारे संघर्ष को, हमारे गुरुधामों को, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की आस्था को बरकरार रखने के लिए सारे साथी तैयार हैं। आने वाले समय में कहीं ना कहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो नई कमेटी बनी है उनके प्रधान की और कमेटी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीधे तौर पर आज आप देख सकते हैं कि एक सिख पंचायत करनाल के गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में होती है, जिसमें हरियाणा भर से जो सिख समाज से जुड़े जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और सीधे तौर पर जो है जो पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारे में हुआ उसका डटकर विरोध किया जाता है, उसका खुलकर विरोध किया जाता है। अमरीश सिंह बुग्गा हमारे साथ मौजूद है। बुग्गा जी, संक्षिप्त में जानना चाहेंगे आज की जो सिख पंचायत रखी गई, क्यों रखी गई और क्या रखी गई? देखो, जो बीजेपी सरकार द्वारा गुरुद्वारा साहिब के प्रबंध अपने चहेते लोगों को और गलत लोगों के हाथों में दिए, उनके हाथों में प्रबंध आने के बाद कभी तो एक ग्रुप नशे के आरोप दूसरे ग्रुप पर लगाता है, दूसरा ग्रुप पर उन पर पैसे खाने के आरोप लगाता है। इस घटना से जो आपने पंजोखड़ा साहिब की घटना देखी, एक जो है लेडीज भी वहाँ बैठी है और इन्होंने भद्दी गालियाँ दी, हम बता नहीं सकते, और एक नशेड़ी के आरोप इन्होंने लगाया, हम नहीं लगा रहे। इससे पूरे सिख समाज का पूरे वर्ल्ड में नाम खराब होता है। ये सेवा करने वाली कौम है, प्यार करने वाली कौम है, ये लड़ने वाली कौम नहीं। इसको लेकर पूरे हरियाणा की सिख संगत में विरोध था। आज मीटिंग की गई, आगे का जो फैसला लिया गया 28 तारीख को सिरसे में महापंचायत होगी और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कमेटी को भंग करने को लेकर जो है ये एक कड़ा विरोध यहाँ पर किया गया और सिख पंचायत यहाँ पर रखी गई, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।